अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है बच्चों? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है। Okay, last time we were talking about design, research design and study design. Today we have to see the types of design and how we select them and how we give name to the study according to these designs. So, ओके सर। sure. So the first one thing that we have to study is difference in quantitative and qualitative research design or study design. So quantitative study design mean quantitative research mean a research that is being quantified. It is in the form of numbers. It is well structured. The research would be well structured mean the question क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि टाइटल क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपने पहले से डिज़ाइन किया हुआ होगा
क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास हाइपोथेसिस पहले से बने होंगे, आपके पास ऑब्जेक्टिव पहले से होंगे, और आपके पास जो डाटा आएगा वो आपने ऑलरेडी डिटरमिन किया होगा कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपने लेने हैं, आपने कैसे डाटा कलेक्ट करना है, आपने क्वेश्चनर को यूज़ करना है या कोई मेथड यूज़ करना है, तो वो ऑलरेडी आपने स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, in this case most of the time even titles or topics they are not decided, their hypotheses are not decided already, they are not made, objectives are not made, and then the methods and number of samples they are not specified uh, before doing a research. So we can say quantitative study design studies are structured studies. Structured mean their structure, their format is already decided, and where we have to reach is already decided. उसमें सारा कुछ आपको पता होता है कि आप कहाँ पे क्या रिलेशनशिप आप डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वालिटेटिव स्टडी में ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव स्टडी इज़ लाइक यू हैव डिज़ाइंड स्टडीज़, ये सारी स्टडीज़ जो हैं ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव जो है सॉरी क्वालिटेटिव, फॉर एग्जांपल अ पर्सन दैट वुड गो टू अ सीन, फॉर एग्जांपल एन एक्सीडेंट, जैसे रिपोर्टर करते हैं टीवी के रिपोर्टर, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिसर्च। so they go to that area, they have not decided how many number of people they would contact in order to get that information। तो जब उनकी इंफॉर्मेशन पूरी हो जाती है they would स्टॉप सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग है वो जो लोगों से पूछ रहे होते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कौन सी गाड़ी कैसे, तो ये सारी बातें वो पूछते हैं, ड्राइवर कौन था, क्या था, ये सारी बातें वो डिफरेंट लोगों से पूछेंगे। उन्हें ऑलरेडी उन्होंने डिटरमिन नहीं किया हुआ कि कितने नंबर ऑफ सैंपल्स उन्होंने लेने हैं। So it is type of qualitative type of study. So if we see study designs, we'll see later on what are the study design available in quantitative and qualitative research. So it is one of the examples that I have given. So quantitative study designs, they are a lot of study designs in quantitative study, and then they are very specific, they are well structured, as we said, they are already decided. So they are tested for validity and reliability। हमें पता है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी क्या होती है, दे आर वेल डिफाइंड, they are already recognized। In case of qualitative study, these characteristics that are of quantitative study design, they would be less, or there would be no such characteristic in those study design। हम later on इनको देखेंगे। So if we see quantitative research, जो काम आप लोग कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो डिज़ाइन कौन से होंगे। So these designs that are being used in quantitative research, they could be divided into different categories. They could be classified on the basis of three characteristics। तीन चीज़ों की basis पे उनको हम different groups में characterize कर सकते हैं, उनको categorize कर सकते हैं। Number one is number of contacts with the study population। So it is number of contacts with the study population, then reference period of the study, then nature of the investigation। These are the three characteristics on the basis of which we categorize study quantitative research design or study design into different categories। So if we have contact with our population one time, we'll categorize it into cross-sectional study. We'll see it later. If we have contact with study population two times, then it would be called as before and after study or pre and post study, because we have contact with the study population before any intervention and after any intervention। If we have many time contact with a population, then this study would be called as longitudinal study। So on the basis of number of contacts with the study population, we can categorize uh, research design or study design into cross-sectional studies. They could be before and after, they could be longitudinal studies। So if we see
For example, if we have to see the age of puberty of boys in Rawalpindi city. सो व्हाट वुड बी द ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ये हम कैसे कर सकते हैं कि हमें पता चले कि एज ऑफ स्टडीज जो है, एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है बॉयज़ में, कोई बता सकता है? सर सैम्पलिंग करेंगे हम लोग सैम्पलिंग क्या, पॉपुलेशन से। सैम्पलिंग क्या करेंगे? सर हम लोग जो टीनेज के होंगे बॉयज, उनको हम लोकेट करेंगे कि सैम्पलिंग के थ्रू के कितने पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि इतने एज के स्टूडेंट्स में आ जाती है प्यूबर्टी एट दिस एज। अच्छा, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है ना? कौन कोई यस सर। कह रहा है? अच्छा, ऐसे है कि हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं इसमें, हम तीन तरह से इसको कर सकते हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट एजेस के लोग होंगे, किस एज में प्यूबर्टी आती है तकरीबन, वी कैन से इट इज़ अबाउट 9 to 11 ईयर फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो ये स्क्रीन नज़र आ रही है ना? यस सर। ठीक है, बॉयज़ के अंदर ये एज है। सो इन बॉयज़ इट इज़ 9 to 11 years. Now we have three options. The first one is that there are normal people or boys of this age group, they live in नॉर्मल पॉपुलेशन, जो नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर रह रहे हैं, हम उनमें देख लें कि प्यूबर्टी कब आती है। फॉर एग्जांपल वी टेक सैंपल फ्रॉम 5 ईयर टू, हम 5 ईयर के बॉयज़ से लेके अगर हम 13 ईयर्स तक के बॉयज़ के हम सैंपल्स ले लें, हमें पता है प्यूबर्टी इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई और एलिवेटेड लेवल्स ऑफ LH luteinizing हार्मोन, FSH follicular stimulating हार्मोन एंड वुड बी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा हमें पता है कि देयर आर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हम डिटरमिन कर लें 5 to 13 ईयर्स के बॉयज़ में, और हमें पता चल जाएगा कि इस एज के अंदर जो ये लेवल्स हैं ये एलिवेट हो जाते हैं या फिर ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आ जाते हैं। उससे हमें पता चल जाएगा दैट इज़ फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर्स के 10 बॉयज़ लिए, उनके अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हमने मेजर कर लिए। 6 ईयर के हमने 10 बॉयज़ लिए। ठीक है, एंड अप टू हमने 13 ईयर हमने। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि इसमें प्यूबर्टी जो है वो कब आ रही है। ठीक है, सो दैट वी हैड ओनली वन कॉन्टैक्ट विद दी पॉपुलेशन, हमने हमारी पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ द बॉयज़ ऑफ 5 to 13 ईयर्स living in Rawalpindi, for example. This was our population. Now we have only one contact with this population. हम गए, हमने देखा कि किसी स्कूल में चले गए, किसी जनरल पॉपुलेशन में, किसी गैदरिंग में, किसी पार्क में, तो हमने वहाँ से जाके 5 to 13 ईयर्स के जो बॉयज़ हैं उनके हमने ब्लड सैंपल्स भी ले लिए और उनके हमने सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक नोट कर लिए। तो अब हमने जो देख लिया इसको कि किस एज में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल बिकॉज वी हैड ओनली वन कॉन्टैक्ट विद द population. Another method that we could adopt is that we can recruit about 10 boys of 10 boys हमने ले लिए and they were of uh, like 7 years of age for, so
we would be following them for about how many years? 6 years. हम उनको हर साल, हर मंथ में, हर 6 मंथ्स में उनका हम ब्लड सैंपल लें और हम उनके सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स देखें। ठीक है, ये कौन सी रिसर्च होगी, डिज़ाइन होगा? इट इज़ कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, because longitudinal we have kept 10 boys and follow then up. we are following them every year. हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उनसे ही ब्लड सैंपल रहे हैं। आवर पॉपुलेशन वाज दीज 10 बॉयज। ठीक है, उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं से हम सैंपल ले रहे हैं हर दफ़ा और हम देख रहे हैं हर साल उनके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक और ब्लड सैंपल से हार्मोन्स में। ठीक है, सो दे दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल। एंड देन वी हैव अनदर डिज़ाइन, एक और डिज़ाइन भी हो सकता है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल वी टेक samples of we have guessed that puberty would occur at 9 to 11 years of age, so we take samples of boys from same boys that are 7 to 8 years, and then we take their blood. For example, they were 10 boys, हमने 10 बॉयज ले लिए। ठीक है, 7 to 8 ईयर्स के, उनके हमने ब्लड सैंपल लिए, उनके हमने हार्मोन्स देखे और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ टाइम के बाद एक मरतबा फिर इन्हीं बॉयज़ के 10 बॉयज़ के जो अब इनकी एज बढ़ गई, दे हैव गॉन अप टू 12 to 13 ईयर्स। ठीक है, इनके हमने दोबारा से ब्लड सैंपल्स लिए और इनमें हमने हार्मोन और सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, नाउ वी हैव गॉन थ्रू आवर पॉपुलेशन दैट इट इज़ ऑफ 10 बॉयज़ फॉर 2 टाइम, 7 one time at 7 to 8 years of age and then at second time 12 to 13 years. So we had 2 contacts with the study population, so it would be called as before and after, before puberty and after puberty. So we have these 3 types of design on the basis of contact with our population. सर ये जो आपने अभी हमें लास्ट में करवाया, जो 7 to 8 ईयर्स के बॉयज का किया, उन्हीं बॉयज का हमने 12 to 13 उनको ईयर्स में हमने किया। 12 to 13 ईयर्स में अगर करते हैं, वी हैव टेकन ओनली 2 सैंपल्स। ठीक है, एक हमने 7 to 8 ईयर में ले लिए और एक हमने 12 to 13 में ले लिया और कंपैरिजन कर लिए कि उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, so that would be called as before and after. So on the basis of सर ये फॉलो अप नहीं हो जाएगा, hmm? ये फॉलो अप नहीं हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की तरह का? फॉलो अप के लिए नंबर ऑफ सैंपल्स चाहिए। ठीक है, मोर देन 2। ठीक, ठीक है, मोर देन 2 होंगे अगर हम उसमें सैंपल देन साइज फॉलो बढ़ा अप लेते और हैं। लॉन्गिट्यूडनल। ओके सर। ठीक है, अगर 2 दफ़ा कांटेक्ट होगा पॉपुलेशन से, देन इट इज़ कॉल्ड एज बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर स्टडीज। ठीक है, सो आप लोग थोड़ा सा वेट करो। ओके सर। शायद मैं डिसकनेक्ट हो जाऊँ, लेकिन आप लोग ऑन होल्ड रहो, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। इशू आ रहा है इसमें।